ઊંડા શ્વાસ ભરીને ઓંકારના ઉચ્ચારણ કરવા માત્રથી ફેફસા મજબૂત થાય છે. ફેફસાની પ્રોબ્લેમ એનાથી આસ્થમા, પછી બ્રોન્કાઇટિસ, સાઇનોસાઇટિસ, લંગ ફાઇબ્રોસિસ, સાર્કોડાઇસિસ, ઘણા બધા ફેફસાના રોગો, કફના રોગો થાય છે. એના માટે ઓંકારનો ઉદ્ઘોષ કરવાનો, એના માટે આ લંગ બસ્તી કરવાની. ગુદા બસ્તી, યોની બસ્તી, પછી કટી બસ્તી, ગ્રીવા બસ્તી, આ બધું તો તમે સાંભળ્યું હશે. આ નવી બસ્તી છે. ફુફ્ફુસ બસ્તી, લંગ બસ્તી, ફેફસાની બસ્તી. એમાં ગરમ તેલ, જે બલાદી તેલ છે કે સરસોનું તેલ છે કે તલનું તેલ છે, એને ગરમ કરીને એ ગરમ તેલ ફેફસા ઉપર આમ નાખવાનું. પછી પોટલી મસાજ કરવાની. જે કફનાશક દ્રવ્ય છે એની પોટલી કરીને એનો ગરમ તેલથી એનો શેક કરવાનો. અને પછી આ લપેટ કરવાનો લસણ, ડુંગળી, હળદર અને આદુ. હળદર, આદુ, લસણ, ડુંગળી ચારેય વસ્તુ સમાન માત્રામાં લઈને એનો પેસ્ટ કરીને અને ઉપરથી આમાં પછી થોડું દિવ્ય ધારા એ નાખી દેવાનું. દિવ્ય ધારા ઉપરથી નાખી દે અને આ લેપ કરી લે તો ये लो इसको दिव्य धारा भी लगा दो. इसके तो पूरा प्रसाद मिल गया. तो जा करके निशाना फेफड़े पर ही लगा. तो આ ફેફસા માટે એને બહુ જ સરસ છે. એને ફેફસા ઉપર જ નાખવાનો, એના આંખમાં નહીં નાખવાનો. અને આવું લેપ લગાવીને આખા ફેફસા ઉપર પછી એને લપેટ લગાવી દેવાનો. નીચે કોટનનું વસ્ત્ર લેવાનું, ઉપરથી ગરમ વસ્ત્રનું એ લપેટ કહેવામાં આવે नेचुरोपैथी में. हमारे दूसरे भाई हैं सुरेंद्र भाई, क्या नाम, रमेश भाई. એ રમેશભાઈ ને તો એને પણ લપેટ લગાવેલી છે. બેસીને ભસ્ત્રિકા કરો. એને તો कितनी ત્રણ પીઢીઓ છે. નાનીને હતું, પછી માને હતું, પછી એને થઈ ગયું, એને ભાઈઓને ને બહેનોને सबको हो गया था. सबने. એને જેનેટિક અસ્થમા કહેવાય. 3 बहनें गई, 1 बड़े भाई गए. જો આ માત્ર આવું ખતરનાક રોગ છે. ફેફસા નબળા હોય તો એનાથી મોત પણ થઈ શકે છે. અને આ રમેશભાઈ એ તો પ્રમાણ છે એના. छोटे भाई को भी है स्वामी जी. और बड़े को भी है. छोटे भाई को भी, बड़े तो गए. वो गड़े. छोटे भाई को भी है. और तूने कैसे ठीक किया? मैं 2003 में योग करना शुरू किया था. गुड़गांव में शिविर लगा था उससे. हाँ. फिर बस यही करते रहे और यहाँ भी आके 2003 માં મારું શિબિર હતું गुड़गांव. એ અટેન્ડ કર્યું, ત્યારથી આ કરવા લાગી ગયા. તો ફેફસા ठीक किया. और क्या क्या ठीक किया? और बीड़ी सिगरेट सब वहीं छोड़ दी थी, चाय सब. बीड़ी आपने एक बार कहा छोड़ दी. एक बार बोला और छोड़ दिया. ये भी बड़ी बात है कि गुरु की बात मानना. कि गुरु हमने केस है, હું તો દક્ષિણામાં લઈ લો બધાને. दारू इन्होंने छुड़ा दी फौज में. હે, दारू इन्होंने छुड़ा दी. હેમલતાને દારૂ છોડવા દિયા. અને અત્યારે હેમલતા તો એક આદર્શ બનાવ્યું છે. એનો ગામનું શું નામ? હેમલતા. ખેડકી ગામમાં એક પણ માણસની મોત કોરોનાથી નહીં થઈ. કોરોના થયું પણ ઘરે લીમડા ઉપર ગળો લગાવ્યું, લીમડાની ગળો, પછી તુલસી, કાળી મિર્ચ, આદુ, હળદર એ બધું નાખીને ઉકાળો કરીને આખા ગામડા પી ગયા અને योग કર્યા. તો ખેડકી ગામમાં कितनी आबादी है? 1500 के करीब आबादी है. पूरा गांव स्वस्थ बना के रख दिया. 3 ઝાડ છે લીમડાના, એની ઉપર ગળો લગાવી દીધી. હા, એ આદર્શ કામ કર્યું છે હેમલતાબેને. એ ભાઈએ પણ, બીજા ભાઈ અહીંયા બેસ્યા છે, એને પણ ફેફસાની પ્રોબ્લેમ હતી. પ્રાણાયામ ફેફસા માટે સૌથી જરૂરી છે. આસનો પણ બતાવીશ. ઉષ્ટ્રાસન, મકરાસન, ભુજંગાસન, ધનુરાસન, મરકટાસન, આસનો, સર્વાંગાસન એ પણ સારા, પણ વધારે સારું પ્રાણાયામ. ફેફસાનો સીધો અસર થાય એના ઉપર. क्या नाम है? मेरा नाम ब्रिजपाल शर्मा है. मैं दिल्ली से आया हूँ. मेरी माँ को बहुत ब्रोंकाइटिस था. उसके बाद मुझे भी बहुत ब्रोंकाइटिस हो गया. एलोपैथी में मैंने ट्रीटमेंट करवाया. मुझे इनहेलर और बहुत दवाइयाँ लिखी, लेकिन मुझे उससे कुछ आराम नहीं हुआ. मैंने टीवी पर देखकर
आपको देख थोड़ा फॉलो करना शुरू किया, उससे मैं काफ़ी ठीक हो गया, लेकिन पूर्ण ठीक नहीं हो पाया। इसलिए मैं यहाँ आया और मैं 3 दिन से यहाँ आया हूँ। 3 दिन में ही मुझे जो है बहुत आराम हो गया है। मेरी नसिका बिल्कुल खुल गई है और इसमें भी मुझे मेरे अस्थमा में बहुत आराम हो गया है मुझे। मैं तो समझता हूँ कि बाबा जी जो है वो भगवान का अवतार जो है वो आए हैं, जिसकी वजह से जो है पूरी दुनिया में जो है ये योग हो गया है। और मैं तो अगर जिंदा हूँ तो बाबा जी की वजह से हूँ। इतना शंख नाद करके, शंख बजा के मैंने इस तरह से मुझे शंख बजाया, खूब शंख बजाया बाबा जी हाँ। ने, खूब शंख बजाया। और मुझे इतना शंख बजाया कि इतने मुझे कोरोना हो गया था। मुझे कोरोना हुआ, मुझे 1 महीना कोरोना में बुखार में रहा, लेकिन मेरे फेफड़े खराब नहीं हुए बाबा जी की मेहरबानी से। ये बहुत जोरदार काम कर लिया। मेरा कोई फेफड़ा खराब नहीं हुआ और अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। कितनी है? जी, उम्र कितनी? उम्र मेरी 66 है। 66 ની ઉંમરમાં 1 મહિના સુધી બુખાર તાવ રહ્યો હતો, ફેફસા એનાથી બચાવી લીધા, નહીતર આ ઉંમરના માણસો મરી ગયા, યુવાનો મરી ગયા। આ પ્રમાણ છે। हमारे क्या नाम भाई? ब्रिजपाल शर्मा। ब्रिजपाल शर्मा जी और रमेश जी, ये 2 बड़े प्रमाण हैं इस बात के। ये योग ना कर रहे होते तो मर गए होते। इनके बिल्कुल मर गए परिवार होते। में तो 3 मौत हो चुकी, 4 मौत हो चुकी है रमेश जी के यहाँ तो, और ये खुद ही मर गए होते। मैं तो कोरोना में मर ही गया होता, मुझे कोई नहीं बचा सकता था। ऐसे करोड़ों लोगों को जीवन मिला है, तो पण લોકો પ્રાણાયામ નથી કરતા। એનાથી શું થાય છે? અરે મારા દીકરા, કરી ले प्राणायाम, भस्त्रिका। एक गुब्बारा भी, आजकल लोगों से गुब्बारे में हवा नहीं भरी जाती, इतने कमजोर फेफड़े हो गए। एक बार में गुब्बारा फूल जाए पूरा। अब बताओ, लोगों से ये यही नहीं भरता, फेफड़े इतने कमजोर हो जाते हैं वो। अब ये गुब्बारे इसके भरने के लिए भी लोगों ने मशीन मंगवा रखी है। बताओ, पंप से भरते हैं पंप से भरते हैं, खुद का पंप कमजोर पड़ रहा है। तेरे को क्या हुआ था बालक? हाँ, मेरे को बाबा जी कोरोना हुआ था अप्रैल में। हाँ, अब उसमें फिर मेरे को कोई सिम्टम नहीं था, बस कफ और कोल्ड। हाँ, और फिर कोरोना ठीक हो गया 7 दिन में। हाँ। लेकिन ये कोल्ड नहीं गया। फिर क्या किया? फिर कोरोलिन खाई और नाक में एनुटेन डाला, तब भी थोड़ा थोड़ा कोल्ड रह गया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि। और अब मेरा कोल्ड पूरी तरह ठीक हो चुका है। बस कितने दिन में? कि 4 दिन में मात्र। 4 दिन में पूरा ठीक कर लिया। लो, हाँ, बहुत अच्छा बालक है। क्या नाम है? ईशान। ईशान के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। अभी बहनों का पूछते हैं, एक एक बहन ने, भाई ने। ये तो पेट माटे तो मुंडूकासन અને ફેફસા માટે ઉષ્ટ્રાસન, વક્રાસન, ભુજંગાસન બધા બતાવીશ। हाँ, आपने क्या लाभ पाया हेमलता? गुरुजी ओम। ओम। मैं तो गुरुजी शुरू से ही बहुत ज्यादा बीमार थी। अब तक तो माला टंग गई होती मेरे सिर फोटो पे। हाँ, बस जब से आपको देखा तब से योग शुरू कर दिया और मैं बच गई। बीपी शुरू में मेरी बीपी लो होनी शुरू हो गई। स्वामी जी, किसी को पता नहीं था कि बीपी लो क्या होती है। बस वो भूत प्रेत चक्कर काटने के चक्कर में मेरा को इतनी हालत खराब कर दी। फिर मेरे हस्बैंड मेरे को फौज में ले गए, उधर पता लगा कि इसको बीपी लो है। फिर दवाई खाई, दवाई से फिर डिप्रेशन में हो गई। फिर योग का बाद में पता चला, तो योग से मैं बिल्कुल अब 10 साल से 15 साल से कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। आपके साथ में योग करती हूँ, सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के और बैठ जाती हूँ। और स्वामी जी, पूरे कोरोना में मैंने सबका वो गिलोई वगैरह सबको खिलाई, लेकिन मेरे को ये था, विश्वास था आपके ऊपर कि मैं बीमार नहीं होंगी। कितने गांव में बीमार हुए थे? तकरीबन 1500 घर थे, तो कोई 1-2 ही बचा होगा स्वामी जी। सबके घर में टाइफाइड आ रहा है, टाइफाइड आ रहा है, लेकिन वही कोरोना के लक्षण था। हाँ, कोरोना का लक्षण बुखार कोरोना। बेटी बताती थी, हाँ, बेटी आर्मी में है, डॉक्टर। वो बोलती थी कि ये कोरोना के लक्षण है मम्मी, कोई टाइफाइड नहीं है, और ये बोलो हॉस्पिटल कोई नहीं जाएगा, और यही खाएं सब। लो, और उसने डॉक्टर है, अपने आप को बचा के माँ ये सबको गिलोय तुलसी पिला, सबको कोरोनिल खिला, सबको अपने ठीक कर दिया।
स्वामी जी मेरे को ये था कि मेरा योग और गुरुजी बदनाम ना हो जाए। अगर मैं बीमार हो गई तो मैं डरती थी मेरे हस्बैंड से, कभी मेरे को कुछ हो गया तो सब ये कहेंगे कि ये बड़ी योग करती है बाबा का। कि हाँ, शाम को मैं अपने प्लाट में ही बच्चों का योग लगाती हूँ और स्कूल में भी सिखाने जाती हूँ। और आंदोलन में स्वामी जी के साथ में थी, 4 जून को डंडे खाए थे वहाँ से। चलो ये तो माता मजबूत माता है, सारा गांव बचा रही है इसने, पूरा गांव। इसको देना दूसरी को। तो जिनको भी अस्थमा कफ कोल्ड है, पेट गड़बड़ है, तो मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, स्वामी जी ओम। मेरे परिवार में 3-4 जनों को कोरोना पॉजिटिव था। मेरे हस्बैंड को तो हाई पर शुगर रहती है, बाईपास हो चुका है, बीपी रहती है, सब रहती है, फिर उनको कोरोना हुआ। सब घर वाले भले डर गए थे, पर बेटा आया तो वो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा विश्वास करता था कि मेरे योग और पतंजलि योग से ही मैं ठीक होंगे। तो वो सारी दवाइयाँ कोरोनिल की और सारी दवाइयाँ ला के ने उसी दिन से सारे परिवार को देने लगा। फिर 4 जनों को कोरोना हुआ, किसी को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो तुरंत 4 दिन में मेरे हस्बैंड तो 3 दिन में ही घर आ गए कि मुझे कुछ नहीं है। हॉस्पिटल जरूर लेके गाड़ी आके, पर वो वहाँ से डॉक्टर को हाथ जोड़ को क्या मेरे को घर ले जाओ, मैं घर जाके ठीक होऊंगा। फिर घर आए, तीसरे दिन क्रिटिकल पोजीशन होती है जब हार्ट की भी प्रॉब्लम हो और कोरोना हो और डायबिटीज भी हो, ब्लड और प्रेशर मेरे तो पॉजिटिव था, पर मैंने तो कुछ पाला ही नहीं। किचन में गई, सबको खाना देती रही बना के, मुझे कोई डर नहीं था। और गिलोय, घनवटी, कोरोनिल, अनु तेल, सोसारी सब लेती रही और अपना काम करती। जो गले में खराश थी वो खराश रह गई थी, इसलिए फिर मैं थोड़ा सा यहाँ आई हूँ कि मैं अब 2 दिन से यहाँ आई हूँ तो मुझे बहुत आराम है। अब लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोटी योगिनी 2 है। ओम स्वामी जी, सुहानी गुप्ता है, मैं कोलकाता से आई हूँ। मैं जब 1 साल की थी तो मुझे अस्थमा हो गया था। 1 साल की थी तब से? हाँ स्वामी जी। तो इतने सालों से मैं बस वही एलोपैथिक का इन्हेलर, नेमोलाइजर वगैरह लिया था। फिर कुछ दिन, मतलब कुछ साल पहले, मतलब मेरी दादी जी हैं जो है वो आपको फॉलो करती थी, तो वही हमें घर में योगा सिखाती थी। सब लोग योगा करते थे सुबह, तो फिर आराम मिला। फिर होम्योपैथिक भी किया था, उतना आराम नहीं मिला, तो फिर मैं यहाँ आई हूँ। मेरा फर्स्ट डे से ही सारा दवाई बंद हो गया है। फर्स्ट डे? कितने दिन हो गए गुड़िया? मेरा 7 दिन हो गया, आज हम चले जाएंगे। 7 दिन में? ये देखो जोरदार ताली बजाए बस। पूरा दवाई भी बंद हो गया, मेरा वेट भी कम हो गया। वेट कितना कम कर लिया? मेरा 3 किलो कम हो गया था। 3 किलो? कितने साल की उम्र गुड़िया? मेरा 16 प्लस है। 16 प्लस? बस 15 साल से बताओ, 1 साल की थी तब से इसको ये प्रॉब्लम। बस ये दवाई खाते खाते मेरा हाइट रुक गया था। अब हाइट भी बढ़ जाएगा। सर्वांगासन, हलासन और सूर्य नमस्कार भी करना। ओम स्वामी और जी। छोटी गुड़िया को देना। जिनको कफ कोल्ड है, चलो ये उष्टासन करो, आप तो बहुत अच्छी करते हो, उष्टासन करो। ओम स्वामी जी। बच्चे बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत अच्छा करते, करो। मुझे ना जब भी मैं सुबह उठता हूँ छींके आती थी तो हाँ, और मेरी मम्मा ने प्राणायाम कराया और गलोई गणपति और गलोई का गारा दिया। एंड नाउ आई एम ऑल बेटर। और मैं यूएसए से आई हूँ। अब अच्छी हो गई। अब देखो ये छोटी सी गुड़िया, ये छोटी सी बुलबुल अब उड़ने लग गई है। नहीं तो इसकी उड़ान जो है वो बंद हो गई थी। किससे? मैं बहुत सारी छींके, लाइक 20 या छींके मारती थी? 20 या 25। 20 मारती थी। छींके, इतनी छींके आती थी इसको, बताओ छोटी सी गुड़िया को। तो छींक से तो अच्छा नहीं लगता था ना, अब दूर हो गई। भुजंगासन, शलभासन करवाना, ऊंडा ऊंडा श्वास साथ आवी रीते भुजंगासन। हाँ जी स्वामी जी, मेरा नाम पूरन है, मैं चंपावत जिले से आया हूँ। हाँ स्वामी जी, 4 साल पहले ऐसे ही कुछ तनाव हो गया था मुझे, कुछ मोबाइल में कुछ देख लिया था मैंने, मोबाइल और से कुछ डिप्रेशन हो गया था स्वामी जी। उसके बाद मैंने फिर योग करना चालू किया। उसके बाद धीरे धीरे उसमें मेरे हेल्थ में सुधार आने लगा स्वामी जी। और अब क्या हाल है? पिछले 5 दिनों से यहाँ आया तो उसके बाद योग किया मैंने, तो उससे अब बहुत सुधार है स्वामी जी। और मेरे साथ मेरे पिताजी भी आए हैं। અત્યારે તબિયત સારી છે તો જેને પણ આ ફેફસાની પ્રોબ્લેમ છે, આ ઉષ્ટ્રાસન, વક્રાસન, સલભાસન, ધનુરાસન, થોડા सर्वांगासन आसनों पण करी लेजो। અને प्राणायाम, पीछे वाली बहन जी को देना, बहुत देर से हाथ उठा रही है। ये तो योग कर करके लोगों की जिंदगियां बदल गई। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। ओम स्वामी जी, मैं कोटा से आई हूँ, गंगा शर्मा मेरा नाम है।
और मेरे को अस्थमा बहुत तेज हुआ था, मेरे पिताजी को होता था, जो इसके बारे में ज़्यादा हाँ मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैं डॉक्टरों के पास जाती थी तो मुझे इतनी इतनी दवाइयाँ दे देते थे। उन दवाइयों से मैं हिलती थी ऐसे, और वो कहते थे कि इसकी कोई मतलब इसका कोई जिंदगी भर तक तुम्हारी दवाई चलेगी है। फिर मैं बहुत परेशान हो गई। किसी ने मेरे को, मैं सात्विक की हूँ तो गलत चीज़ का खान पीन नहीं खाती, तो बहुत से लोगों ने सलाह दी, बोले अंडे खिलाओ, किसी ने कहा मछली खिलाओ तो इनका वो मिल जाएगा। मैं इनके मर जाऊं पर भी नहीं खाऊं। फिर मैंने आप यही बोलते हैं आजकल, आप जब मांस खाओगे नहीं, मीट खाओगे नहीं, मछली खाओगे नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी? आप जब हनुमान जी ने मांस मछली खाई थी, राम जी ने, कृष्ण जी ने, सारे देवताओं ने असुरों का संहार किया, मांस मछली खाई थी। स्वामी रामदेव पूरी दुनिया से लड़ रहा है और योग आयुर्वेद पूरी दुनिया में फैला दे, मांस मछली खा के फैलाया। फिर मैंने, आप जब कोटा शुरू में गए थे तो लोग क्या महंगे कर आए थे। उसके बाद में स्वामी जी मैंने श्वासाहारी काढ़ा पिया, मेरा इतना इतना कफ निकलता था, उठ के मैं थूकने नहीं जा सकती थी, पास में कागज रख के थूकती थी, तो ऐसे हिलने लग जाती थी, तो हिम्मत नहीं रहती थी बिल्कुल। मैंने काढ़ा से ही मेरे को अपना ठीक किया, और ये लोम प्राणायाम करा था तो ठीक हुई। लेकिन अभी जो कोरोना चल रहा था उसमें मेरे बेटे और बहू ने बहुत सेवाएं दी, ऑफिस में इंस्पेक्टर है वो, तो उन्होंने काढ़ा बना के गिलोय का सबको पिलाया, सब चीज डाल के काढ़ा बनाते थे। मम्मी, उनको चिंता थी कि मम्मी को अस्थमा है, उनका ज्यादा ध्यान रखना। बिटिया ने मेरे को काढ़ा बना के रोज पिलाया, बोले मम्मी का ज्यादा ध्यान रखो, इनको अस्थमा है। स्वामी जी मेरे को ये एलोपैथिक दवाइयों से कब्ज हो गई है, कब्ज ने इतनी बुरी तरह घेर लिया है कि मैं बिल्कुल दवाई बिना नहीं जा सकती थी। मुझे 40-40 रुपए के पाउच, 8 पाउच कब्ज के दे दिए, तो मेरी ये हाथें बिल्कुल खराब हो गई। मैं बिना दवाई के लेट नहीं जा सकती बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ, पहले तो तेरा फेफड़े का क्या हाल? अभी बिल्कुल ठीक है, फेफड़े बिल्कुल ठीक है। और पेट क्या? पेट मेरा अभी यहाँ आकर के बिल्कुल ठीक हुआ है। मैं अपने आप गई हूँ, 5 बस्ती हो गई मेरी। ये लो, अपने आप जा रही है तो बताओ। तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, बोले मम्मी आप योगा कराना, हमको सिखाना, और एक एक चीज सीख के आना, हमको बताना। चलो भाई, गंगा मैया की गंगा मैया मैं सबकी सेवा करूंगी। अभी तक गंगा जी में हर गंगे हो जाता है, कब्ज दूर हो जाए महाराज जी, बस मैं सबकी सेवा करूंगी। मेरा सेवा भावी स्वभाव है, कब्ज भी दूर हो जाए। अभी नहीं तो ये फेफड़े की बीमारी आदमी को मार देती है। जैसे भाई बता रहे थे, रमेश जी की 4 लोगों की मौत होगी परिवार में, बहुत खतरनाक बीमारी। हाँ अम्मा। ओम स्वामी जी। हाँ। मैं फरीदाबाद से आई हूँ स्वामी जी। मेरे 81-82 से लेके और 2008 में आपने ना क्रूज पे योगा के रोज सिखाया था। वो हैदराबाद में मेरा बेटा रहता था, मैं उसके पास गई तो मैं वहाँ खाली रहती थी, काम नहीं होता था। और छींकें जैसे गुड़िया बता रही है ना, ऐसे ही स्वामी जी मुझे लगातार इतनी छींकें आती थी, मैं परेशान हो जाती थी, मैं रोटी नहीं बना सकती थी। और फिर मैंने वो वहाँ रही तो मैंने 1 महीने ना लगातार प्रोग्राम ये योगा किया, आपका प्रोग्राम देख के, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका। उससे पहले मैं इतना नहीं करती थी। योगा तो मैं 2000 से ही कर रही हूँ। पूरा किया फिर? हाँ जी, वो पूरा किया तो मुझे छींकें भी ठीक हुई, और स्वामी जी मेरी अनगिनत बीमारियाँ ठीक हुई। नाखून सूखते थे वो ठीक हुए, हाथ खुरदरे थे जैसे बहन बता रही थी, पैर फटते थे मेरे, सारा काला काला हो गया था, सब ठीक हुआ। आंखें सूखी सूखी रहती थी, वो ठीक हुई, और खुजली होती थी शरीर में, बहुत सारी अनगिनत बीमारियां मैं बता। नया जीवन मिल गया है माता। हाँ जी। क्या नाम है? मेरा नाम प्रोमिला स्वामी जी, फरीदाबाद से हूँ। ओम स्वामी जी। ओम अनुलोम विलोम कपाल भाती, चलो ये तो करो। ओम स्वामी जी। हाँ। मुझे अप्रैल में कोरोना हुआ था, मेरे बेटे को और मुझे, हम दोनों को हुआ था। अच्छा। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो हम जब दिल्ली आए स्कूल से, मैं रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ से इसको कोरोना इसको हो गया, इससे मुझे हो गया। तो जो है हमें 28 तारीख को हमें डिटेक्ट हुआ कि मुझे कोरोना हो गया है। तो हमने वैसे हस्बैंड माने नहीं कि नहीं आपको जो है एलोपैथिक दवाइयाँ खानी है। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँगी। लेकिन उसके बाद हम जब वहाँ पे गए सेंटर पे, तो हमें दवाई मिली नहीं, क्योंकि वहाँ उस समय आई नहीं थी दिल्ली में, जो आपका सेंटर है पतंजलि का। तो उसके बाद में मेरा जो 15% CT स्कैन हुआ, तो वहाँ पे लंग्स ख़राब हो गए थे। तो उसके बाद में फिर मुझे सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो गई। मैं वैसे तो मैं आपको मैं 2006 से फॉलो करती हूँ, योगा करती हूँ, कैसे न कैसे करके आपका 1 घंटे मैं निकाल ही लेती हूँ करने के लिए। तो लेकिन फिर भी मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। हस्बैंड माने नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया पानीपत। 25,000 रुपया एक बेड का, उसमें ना तो कोई दवाई दे रहे थे, ना कोई खाना, ना पानी तक नहीं दिया गया था। मेरे हस्बैंड भटकते रहे, खाना भी नहीं हमें मिला। तो किसी से रिक्वेस्ट करी
कोई बहुत दूर ऐसे ही जो लंगर वगैरह चलाते हैं उनसे हमने खाना मंगाया। और उसके बाद में जब 3 दिन मैं बेड पे बैठे बैठे ही कपाल भाती वगैरह करती रही, क्योंकि अनुलोम विलोम करती थी तो सांस उखड़ती थी, कपाल भाती करती रही और मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया था। उसके बाद मैंने कहा अब मैं जाऊंगी, तो जो है चौथे दिन मैंने वहाँ से अपना छुट्टी करवाई और घर पे आकर के फिर हस्बैंड ने ऑनलाइन डिलीवरी करवाई थी कोरोनिल किट की और स्वासारी गोल्ड वगैरह, और मैंने दिव्य धारा ये सब करा। उसके बाद तुरंत मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं पहले से करती आई थी। भगवान जाने मुझे कितने दिन में ठीक हो गई? फिर मैं 5-6 दिन में ठीक हो गई। हॉस्पिटल में हालत खराब थी वहाँ, और रोज 25,000। और मुझे स्वामी जी 16 साल से थायराइड था, हाइपर थायराइड था, जो मुझे आपके थायरोग्रिड से मुझे इतना फायदा हुआ। 4.5 जिसकी रिपोर्ट है मेरे पास, हस्बैंड के पास पूरा नॉर्मल आ गया 4.5। और मेरा अभी यहाँ वहाँ आने पे शुगर नहीं ठीक था, यहाँ पे मैंने रात को ही टेस्ट किया और आज मुझे टेस्ट करवाना था, तो मेरा शुगर भी ठीक हो गया है। शुगर ठीक कर लिया। अब लोग ऐसे बहका रहे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, कोरोना, सब बीमारियों का बहाना बना बना करके लूट मचा रखे। चलो ठीक हो गई, अब जान बची लाखों पाए। इसको देना दूसरी चश्मा वाली बहन जी को। कपाल भाती अनुलोम विलोम करते रहो, अब वाला तो पूरा कर लो। मैं ग्वालियर से आई हूँ और मेरे को कोरोना हो गया था, तो उसमें क्या सब घर में किसी को ऐसे सिम्टम नहीं थे कोरोना के, लेकिन मेरी सांस इतनी फूलने लगी अचानक। उसके बाद फिर मैंने लगातार योग वगैरह किया। आपकी कोरोना ली, डॉक्टरों ने वहाँ पर बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, क्वारंटाइन लेना पड़ेगा, लेकिन मैंने अपने को एक कमरे में बंद करके बिल्कुल आपके जो है स्टीम वगैरह लेती रही, कोरोना लेती रही, और उसके बाद मेरे को आराम मिला। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी। 4 सीढ़ी चढ़ने में भी, मेरा 4th फ्लोर पे घर है, मैं 4 सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी। फिर उसके बाद मेरी छोटी बहन ने बोला कि इंडिया टीवी देखो, उसमें प्रोग्राम आता है, उसको मैंने फॉलो किया और लगातार प्रोग्राम देखने के बाद आज मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ कि आप मेरे को दौड़ने को भी बोलेंगे तो मैं दौड़ती हूँ। चल नहीं पा रही तो दौड़ रही। और एक और बड़ी बात यह है कि मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे बाबा जी के पास ले चलिए, वो मुझे नहीं लेने गए। मैं बहाने से अपनी मम्मी के पास आई मायके मिलने, और मम्मी के साथ मैं यहाँ आ गई आपके दर्शन करने के लिए। कि अब तो हस्बैंड पछता रहे होंगे कि मुझे आज वो इंडिया टीवी पे अगर देखा उन्होंने तो वो जरूर कि बहुत टाइम से मैं कहती मुझे बाबा जी से मिलना है, ना बच्चों को मालूम है ना हस्बैंड को मालूम है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, माई का ही है, माँ का घर और बाबा का घर, गुरु का घर माई का ही होता है, तो अपने माई के माई है। बाबा जी ये मैंने कान छिदवाया था, ये मेरे को कोविड हो गई, वहाँ पे कोलाइट बोलते हैं क्या, डॉक्टरों ने बोला कि यहाँ इंजेक्शन लगेंगे। मैंने कहा मुझे आपसे नहीं लगवाने, मैं बाबा जी को ही दिखाऊंगी, वही मेरा सही करेंगे। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, अब तुम जब जाओगी, जब लेके जाएंगे तब देखेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो का क्या हाल है जी? ये फूलता जा रहा है ये कपाल भाती ज्यादा करना जी, और कायाकल्प नीम गिलोय खा लेना जी, खाली पेट कायाकल्प खाने के बाद नीम गिलोय, और फूल भी रहा है ना, सिस्टोग्रिट भी ले लेना, पूरा ठीक हो जाएगा। सिस्टोग्रिट पूरा। अब तो मैं 4th फ्लोर चढ़ के जाती हूँ एकदम दौड़ती हुई, पूरा दौड़ रही है। तो लोगों ने આવી જુદી જુદી બીમારીઓ થઈ રહી છે, અને એકમાત્ર ઉપાય છે યોગ કરો, અને યોગમાં પ્રાણાયામ વધારે કરો। ફેફસા માટે તો ખાસ પ્રાણાયામ જ રામબાણ બ્રહ્માસ્ત્ર છે। તો યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ મારા સાથે યોગ કરજો અને નિરોગ રહેજો।